omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent, but evil exists. What is this paradox? If evil exists, which means either God is not omnipotent or God is not omnibenevolent. If evil exists, which means either God is not omnibenevolent but omnipotent. Fine. So, this is the philosophical discussion that we will be having today in this particular video, where evil exist. Yes, evil exists, and it is one of the most important component of philosophical discussion, especially in theology and in philosophy. So we will discuss that what is evil, and if evil exists, then how it contradicts the attributes of the God. That is, God is omnipotent, God is omniscient, God is omnibenevolent. Fine. So first thing, that what is evil? बुराई है क्या? तो फिलॉसफी में इसको कहते हैं कि इट इज इमोरैलिटी और विकेडनेस और एक्शंस और इवेंट दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू अदर और डिस्ट्रक्शन, दैट विल बी नोन एज इविल. फिलोसॉफिकली इट इज अ डिस्कशन कि that it is a positive or negative in nature, that we will going to discuss. Sometimes in philosophy it is considered as a positive force because something that exists independently, or sometimes it is a privation, that is absence of good. Theologically, evil often sees as the opposition to God's will or goodness, and that is why theologist will come and try to justify the existence of evil as long as with the attributes of God, such as omnipotent, omnibenevolent, and evil exist, because these three statements cannot be true together. If God is omnipotent and evil exists, which means God is not omnibenevolent. If evil exists and God is omnibenevolent, which means God is not omnipotent. Otherwise, he may have removed the evil. Fine. So, this is the paradox that theologists will face, and they will try to justify the existence of God as long as with the existence of evil. And those arguments will be known as theodicies. So, we will discuss various theodicies in this particular lecture. In practical terms, evil manifests as intentional or unintended harm that disrupt well-being or justice. So at the last, we will also discuss evil in the practical terms, that how to eradicate evil or how we can try to minimize the effect of evil. Fine. So evil, largely evil are of two types. One is natural evil, another one is moral evil. Now, what is moral evil? Moral evil where morality is involved, where moral agent, that is human being, are involved, and moral evil is caused by the immorality or immoral action of any moral agent, जैसे कि murder or rape or dacoity, etc. These are the example of moral evil. Natural evil, where moral agents are not involved, such as disaster, such as tsunami. These are natural evil. Apart from that, there are other evils as well. So moral evil resulting from the intentional action or choices of moral agent. Okay? And due to immorality, such as murder, theft, torture, genocide, terrorism. Natural evil means evil or suffering caused by natural processes or event independent of human action, such as earthquake, famine, tsunami, etc. Then some other types of evil that may be asked by UPSC, that is metaphysical evil. So evil arising from the inherent limitation or imperfection of the created world. It is believed that this world is created by the God. God is perfect, but this world is imperfect. And because of the evil, this world will become perfect. This is one of the theodicy we will discuss, that how evil will help this world to become the best possible world. So metaphysical evil, such as temporality of human being, or you can say inevitability of the death, or fragility of physical body.
or limitation of the human knowledge. So this is another type of evil, or third type of evil, that is metaphysical evil, that arises out of limitation of, or you can say imperfection of the world. And last, institutional or systematic evil. Now you can easily guess that what is systematic or institutional evil. This is one of the newest addition, you can say, or modern addition in the list of evil. So newest addition will be saying that due to the institution or system, such evils will arise, such as caste system, or you can say caste discrimination or gender discrimination, or because of the institutional design, you can say corruption or institutionalized corruption and denial of many fundamental rights to individual. So these are major 4 types of evil. 2 types that we usually discuss in the philosophy, or specifically in the philosophy of religion, part 2 of paper 2. Part 2, paper 2, unit number 3, problem of evil. So usually we discuss 2 types of evil, moral evil, natural evil. But here we have added 2 more evils. One is metaphysical evil and another one is institutional or systematic evil. Now, प्रॉब्लम ऑफ इविल. इविल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है किसके लिए? एथीस्ट के लिए होगी? नहीं होगी. क्यों? बिकॉज एथीस्ट गॉड में मानता ही नहीं है, और जब वो गॉड में मानता ही नहीं है, देन ही विल बी यूजिंग रीजन टू अंडरस्टैंड दोस फेनोमेनास. ईदर इट इज अ मोरल इविल और नेचुरल इविल. मोरल इविल होगा तो वो कुछ लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और नेचुरल इविल होगा तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे चला जाएगा, रादर देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गॉड. दिस इज द एथीस्ट पर्सपेक्टिव. ठीक है, नेचुरलिस्टिक कॉजेज वो ढूंढेगा. पैंथीस्ट के हिसाब से, जैसे शंकराचार्य कहेंगे कि सुनामी भी तो क्या है, नेचुरल इविल है, ये तो परसेप्शन है, इट इज इल्यूजन, इट इज माया, है ना. तो जो पैंथीस्ट होंगे वो कहेंगे रिजेक्ट द प्रॉब्लम डिनाइंग अ पर्सनल गॉड, वीविंग इविल एज ए ह्यूमन परसेप्शन. ये आपका परसेप्शन है कि वो इविल है, ये तो सब ब्रह्म का ही पार्ट है. तो पैंथीस्ट के लिए दूसरी चीज हो गई. थीस्ट के लिए दिक्कत है बिकॉज दे बिलीव इन गॉड. एंड विच टाइप ऑफ गॉड? गॉड एज ए ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी बेनेवलेंट. और यदि ऐसा गॉड है तो ऐसे गॉड के साथ में इविल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है यार. इस वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इविल की, वो किसके लिए है? थीस्ट के लिए. और थीस्ट में भी कौन? वेस्टर्न थियोलॉजिस्ट. इंडियन थियोलॉजिस्ट की बात मैं करूंगा सबसे आखिरी में, कि वहां पे कर्म का सिद्धांत ले आएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे. लेकिन वेस्टर्न थियोलॉजी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज दे बिलीव दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाई दे विल ट्राई टू डिफेंड गॉड्स एग्जिस्टेंस बाय गिविंग वेरियस थियोडेसीज. Fine. So now we will discuss theodicies. Look, God is all powerful, evil exists, which means God is not all loving or God is not omnibenevolent. And similarly, God is all powerful, evil exists, God is all loving. मतलब God all powerful नहीं है, omnipotent नहीं है. अब चीज आती है जो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है. अब तो हमने टाइप्स ऑफ इविल देख ली, प्रॉब्लम ऑफ इविल किस किस के लिए होता है वो देख लिया. अब तीसरी चीज जो आती है थियोडेसी, कि थियोडेसी होती क्या है. सो इट इज एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल इन अ वर्ल्ड क्रिएटेड बाय ओमनीपोटेंट, ओमनीबेनेवलेंट एंड ओमनीप्रेजेंट गॉड. सो बेसिकली थीस्ट पर्सन विल ट्राई टू जस्टिफाई 3 थिंग. गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीबेनेवलेंट एंड इविल एग्जिस्ट. 3 चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश करेगा. एंड ऑल दोज जस्टिफिकेशंस विल बी नोन एज थियोडेसीज. सो वी विल लुक आफ्टर ऑल दोज थियोडेसीज वन बाय वन. फर्स्ट थियोडेसी इज फ्री विल थियोडेसी. फ्री विल थियोडेसी किसने दी? एल्विन प्लेंटिंगा ने. और एल्विन प्लेंटिंगा के हिसाब से क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं. एल्विन प्लेंटिंगा ने कहा दैट गॉड हैज गिवन यू फ्री विल. आपके पास फ्री विल है, नाउ यू कैन यूज योर फ्री विल. सो इफ यू आर परफॉर्मिंग इमोरल एक्शन आफ्टर हैविंग दैट फ्री विल,
that immoral action will results into moral evil. इसकी वजह से moral evil आ जाएगी क्योंकि आपने free will का misuse किया और उसको punish करने के लिए evil आएगी. वो evil moral evil भी हो सकती है, natural evil भी हो सकती है, क्योंकि moral evil तो थी ही जो आपने crime किया. Suppose आपने किसी का murder कर दिया. So this murder is the misuse of free will, and to punish you, evil will come, and that evil will come in the form of natural evil. This is the concept given by Alvin Plantinga. यही है. It argues that God gave human free will to enable genuine moral choices and love. Evil exists because human misuses this free will or freedom, choosing action that causes suffering, that is moral evil. And to punish human being, God created natural evil. Free will is valuable because it allows for authentic relationship between moral responsibility, which could not exist if God forced only good choices. ये भी बोलते हैं that God is omniscient, God सब जानता है, लेकिन God सब जानते हुए भी आपको रोकता नहीं है. आपको फ्रीडम ऑफ विल दी हुई है, फ्री विल दी हुई है, दैट यू कैन यूज योर ओन चॉइस. एक आर्ग्यूमेंट आता है कि यदि गॉड सब जानता था तो वो मुझे रोक सकता था, लेकिन एल्विन प्लेंटिंगा ने कहा कि वो दोनों फिर बैठेगा नहीं साथ में. इट विल बी कंसीडर्ड एज ए प्री डिटरमाइंड पाथ विच इज क्रिएटेड बाय गॉड. तो आप परफेक्ट कैसे बन पाओगे? इनके हिसाब से एक और बात है, दैट फ्री विल इज गिवन टू यू बाय गॉड because you are God's creation. Now you can use this particular free will and become the best possible version of yourself. Right? So this is argument or free will theodicy. अब counter argument क्या है? पहला तो logical inconsistency है, जैसे कि J.L. Mackie argue that an omnipotent God could create beings who freely choose only good, preserving free will without evil. वही कहा कि जब सभी जानते थे तो कुछ ऐसी ही चॉइस देनी चाहिए थी ना भगवान को कि मैं सही कदम उठाता, गलत कदम उठाने ही क्यों दिया मुझे? इफ सच वर्ल्ड लॉजिकली पॉसिबल, गॉड्स फेलियर टू क्रिएट क्वेश्चन हिज ओमनीपोटेंस और बेनेवोलेंस. अब या तो गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है या गॉड ओमनीबेनेवोलेंस नहीं है. पहला. दूसरा, नेचुरल इविल. फ्री विल डज नॉट एक्सप्लेन नेचुरल इविल which is not caused by human choice. Why would a benevolent God allow such suffering? मतलब moral evil मैंने चोरी ही की थी तो उसके बदले सुनामी भेज दोगे क्या यार? तो ये भी एक चीज क्या है कि प्रूफ ही नहीं हो रही है. इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन है नेचुरल इविल का कि मोरल इविल तो मैंने चोरी की थी, 100 रुपए चुराए थे, इसके बदले में क्या भूकंप आ जाएगा, मेरे ऊपर छत गिर जाएगी क्या, ऐसा होना है? तो एक और चीज, काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो एक तो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, नेचुरल इविल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड स्कोप ऑफ इविल, द शेयर स्केल ऑफ इविल, जेनोसाइड, वाइड स्प्रेड सफरिंग सीम्स डिसप्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ फ्री विल. कि फ्री विल तो इतनी सी है लेकिन इतना बड़ा जेनोसाइड क्यों हो रहा है? तो ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट है फ्री विल थियोडेसी के. दूसरा आया सोल मेकिंग थियोडेसी. ये किसने दी? जॉन हिक ने दी. इट पॉजिट्स दैट evil and suffering exist to foster spiritual and moral growth. जो मैंने आपको बताया था कि evil है, क्यों? क्योंकि evil का यूज करके आपकी spiritual growth होगी, moral growth होगी. Without evil आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके लिए सभी अच्छा होगा, तो इससे आपकी spiritual growth नहीं होगी, moral growth नहीं होगी. Morality तभी आती है जब इंसान बुरा फील करता है. स्पिरिचुअलिटी तभी आएगी जब उसको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है. आर यू गेटिंग? तो जॉन हिक ने कहा कि सोल मेकिंग थियोडेसी, इविल की वजह से आप प्रॉपर अपनी जो सोल है उसके ट्रू नेचर में पहुंचते हो. अ वर्ल्ड विथ चैलेंजेस अलाउ ह्यूमन टू डेवलप वर्च्यूज लाइक कंपैशन, करेज, परसीवरेंस, विच आर इम्पॉसिबल इन अ परफेक्ट पेन फ्री वर्ल्ड. ये पॉसिबल नहीं होता, आप में ये वर्च्यू ही नहीं आते यदि सब कुछ परफेक्ट होता तो गॉड ने जानबूझ के ये दुनिया में बहुत सारे लूप होल्स बना दिए, इम्परफेक्ट बना दिया, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल और मोरल ग्रोथ को अटेन कर सको. लाइफ इज अ वेल ऑफ सोल मेकिंग टू प्रिपेयर ह्यूमंस फॉर अ रिलेशनशिप विद द गॉड.
Some say the world is a vale of tears. I say it is the place of soul making, said by John Hick. Fine. This is, but again counter argument कि यार जो सफरिंग है वो तो एक्सेसिव है, unnecessary to the soul making. Could not less extreme challenges suffice? मतलब बात यह है कि यदि ईविल की वजह से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, विच मींस मोर स्पिरिचुअल ग्रोथ रिक्वायर मोर सफरिंग. ऐसा है क्या कि मतलब मुझे और ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, और ज्यादा भगवान के पास जाना है, तो और ज्यादा सफरिंग सहनी पड़ेगी? ऐसा है क्या? क्या प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल चल रहा है? तो पहली तो ये चीज. फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सफरिंग का. कोई लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो कोई बिल्कुल भी नहीं है, और जो पीड़ित नहीं है उसकी भी तो मोरल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है. तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सफरिंग. एंड द थर्ड वन इज नेचुरल इविल. नेचुरल डिजास्टर ऑफन हार्म इनडिस्क्रिमिनेटली इंक्लूडिंग दोज हु कांट ग्रो स्पिरिचुअली फ्रॉम इट. छोटे छोटे बच्चे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होगी? लेकिन उनको भी सफर करना पड़ता है. तो सोल मेकिंग हाइपोथेसिस बाय जॉन हिक एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट. देन ऑगस्टिनियन थियोडेसी. इनके हिसाब से यह है कि जो एक ओरिजिनल सिन जो किया था एडम एंड ईव ने, वो जनरेशंस में फ्लो हो रहा है. वो जो एडम और ईव का जो ओरिजिनल सिन था वो अभी तक चल रहा है. ऐसा माना जाता है फिलोसॉफिकली दैट ऑल द क्रिश्चियन बाय बर्थ आर सिनर. फिलोसॉफी में हम पढ़ते हैं ये चीज कि ऑल द क्रिश्चियंस बाय बर्थ आर सिनर. उन्होंने पाप किया हुआ है, और उन्होंने खुद का पाप नहीं है, वो एडम और ईव ने जो ओरिजिनल सिन किया था वो कंटिन्यूअसली जनरेशंस में फ्लो हो रहा है. ठीक है. सो ऑगस्टाइन्स थियोडेसी और थियोलॉजी व्यूज इविल एज द एब्सेंस ऑफ गुड. ठीक है. मतलब इविल का मतलब है कि यहां पे गुड नहीं है. ठीक है. उसको इविल कहा. नॉट ए सब्सटेंस क्रिएटेड बाय गॉड. इविल एंटर्ड द वर्ल्ड थ्रू द फॉल when Adam and Eve's sin corrupted creation. एडम और ईव का जो ओरिजिनल सिन है वो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से ईविल आई है दुनिया में. दिस इज ऑगस्टाइनियन थियोडेसी. लेकिन फिर से वही बात है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी. मॉडर्न साइंस चैलेंज द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉल एज इवोल्यूशन सजेस्ट दैट नो हिस्टोरिकल ईडन. If the fall is metaphorical, theodicy loses explanatory power. यदि यह metaphorical है तो फिर कोई मतलब की नहीं बची. Justice of punishment, punishing all humanity and nature for the sin of two individuals. पाप तो उन दोनों ने किया था, एडम और ईव ने. ओरिजिनल सिन तो उनका था. पूरी दुनिया को क्यों पनिश कर रहे हो उनके चक्कर में? ये भी तो इशू है. नेचुरल इविल. Attributing natural evil to the fallen world does not explain why omnipotent God could create a world where sin does not disrupt the natural order. ठीक है. तो ये एक और टाइप की थियोडेसी हो गई. फिर है आइरेनियन थियोडेसी which is based on Irenaeus and later developed by Hick. This theodicy suggests human are created imperfect and immature. वही वाली बात है, वर्ल्ड इज इमेच्योर, ह्यूमन इज इमेच्योर, और ईविल विल हेल्प दैट इंडिविजुअल टू इवॉल्व एंड बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. सो ईविल रिक्वायर्स फॉर मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. वही सोल मेकिंग हाइपोथेसिस जो जॉन हिक ने दी थी. फिर से वही वाली बात है कि एक्सेसिव हार्म है. इन्फेंट क्यों सफर कर रहे हैं? उनकी तो कोई मोरल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होनी है, वो क्यों सफर कर रहे हैं? इफ गॉड इज omnipotent, why create human imperfectly? गॉड परफेक्ट है तो ह्यूमंस को भी परफेक्ट बना देना चाहिए था ना, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती. ठीक है. इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि दिक्कत कहां पे आ रही है. एक एथीस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एक पैंथीस्ट के लिए दिक्कत नहीं है. एथीस्ट तो भाई उसको एज इट इज लेता है, फैक्ट्स ढूंढता है, रीजन ढूंढता है, सोल्व करने की कोशिश करता है, दैट्स इट. एक पैंथीस्ट आएगा तो पैंथीस्ट कहेगा ये तो इल्यूजन है, ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है. ये तो सफरिंग है, सफरिंग इज द पार्ट ऑफ गॉड. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है उसको, हर जगह गॉड है. सो ईविल इज द पार्ट ऑफ गॉड. दिक्कत किसके साथ है? थीस्ट के साथ है. ठीक है. वो गॉड के एग्जिस्टेंस को और ईविल के एग्जिस्टेंस को साथ में लाना चाहता है. तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट है ये सारे वही आर्ग्यूमेंट है. स्केप्टिकल थीस्ट जो होते हैं, है ना, जिनको गॉड के बारे में भी संशय है कि नहीं है, वो बोलते हैं, जैसे कि स्टीफन वाइक्स्ट्रा,
ओके, आर्ग्यूज दैट ह्यूमन लैक एपिस्टेमिक कैपेसिटी, ह्यूमन का जो नॉलेज है वो इतना नहीं है कि वो गॉड की बनाई किसी चीज को कॉम्प्रहेंड कर पाए। हो सकता है इसके पीछे कुछ अच्छाई छुपी हो, यही बोल रहे हैं। गॉड्स इनफाइनाइट विजडम एंड देयर मे बी मोरली सफिशिएंट रीजन फॉर इविल दैट वी कैन नॉट कॉम्प्रहेंड। तो गॉड ने इविल बनाई है, हो सकता है कुछ उसके पीछे इंटेंशन हो, हमें नहीं पता हो, है ना। तो वो यहां पे भी स्केप्टिसिस्ट व्यू है। फिर से काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मोरल पैरालिसिस है। इफ वी कांट जज गॉड्स रीजन, हाउ कैन वी ट्रस्ट एनी मोरल जजमेंट। अपेरेंट ग्रेटिव टूअर्ड्स इविल, सम इविल एक्सट्रीम पर्पसलेस मिस्टीरियस होती हैं, और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट थियोडेसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है। गॉड वर्सेस सैटर्न की लड़ाई चल रही है, बहुत सारी वेब सीरीज बनी हुई है इस पे। ठीक है, तो यही है। associated with Gregory Beard and other posits that cosmic battle between God and evil, that is Satan. So evil exists because God's will is opposed by those forces temporarily limiting his control until the final victory. तो जो भी आपको दिख रहा है ये टेम्पररी है, अल्टीमेट विक्ट्री तो गॉड की ही होगी। बोथ मोरल एंड नेचुरल इविल रिजल्ट फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल वॉरफेयर। तो ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है गॉड और सैटन के बीच में, इसकी वजह से हमें इविल देखने को मिलती है। दिस इज कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर से वही वाली बात है, एविडेंस फॉर इविल फोर्सेस स्पेकुलेटिव है, इंपेरिकल कोई एविडेंसेस नहीं है। ओमनीपोटेंट का इशू है कि जब ओमनीपोटेंट ही था तो अब तक डिफीट क्यों नहीं किया, है ना। नेचुरल इविल का अभी भी समझ में आया नहीं। और पनिशमेंट थियोडेसी कि इविल इस वजह से क्योंकि आपने कुछ पाप किया है और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिर क्वेश्चन वही आएगा कि यार किसी ने पाप किया है लेकिन एक छोटा सा बच्चा एक डिजास्टर में मर जाता है, उसकी क्या गलती थी? उसने तो कोई पाप ही नहीं किया था, वो तो अभी धरती पे आया था। तो ये पनिशमेंट थियोडेसी जो है वो वहां पे फेल हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट मिल जाता है। मॉडर्न एथिक्स, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव और इनहेरिटेड पनिशमेंट डैशेस क्लैशेस विद द कंटेम्पररी मोरल स्टैंडर्ड। और डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट मिला हुआ है लोगों को, बच्चे सफर कर रहे हैं सिविल वॉर में, इन्होंने क्या किया था ऐसा कि इनको पनिश किया जा रहा है। बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल थियोडेसी, लेबनीज की थ्योरी है। दिस थियोडेसी क्लेम आवर वर्ल्ड डिस्पाइट इविल इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड गॉड कुड क्रिएट। So every instance of evil serves the greater good or prevent a worse evil, optimizing the balance of good and evil. तो ये जो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनने के चक्कर में इतने सारे इश्यूज हैं, ये भी लगभग सेम ही काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो आपने देखा कि बहुत सारी थियोडेसीज हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो तीन आर्ग्यूमेंट है कि गॉड इज ओमनी पोटेंट, God is omni benevolent and evil exist, ये तीन आर्ग्यूमेंट एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये थीस्ट की प्रॉब्लम है, वो कितने भी आर्ग्यूमेंट दे दे लेकिन प्रॉब्लम ऑफ इविल बनी की बनी रहती है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं दैट नो मैटर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स और हाउ मेनी थियोडेसीज आर propounded, but the problem of evil especially for the theist will remain the same. On the other hand, atheist will try to solve the problem okay practically। तो आप प्रैक्टिकली बोल सकते हो, हम थियोलॉजिकली तो अब हटा देते हैं, प्रैक्टिकली आप कंक्लूजन में एक फॉरवर्ड लुकिंग यदि दो तो आप बोल सकते हो लाइक मोरल इविल कैन बी मिनिमाइज्ड एंड नेचुरल इविल कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड। मोरल इविल कैन बी मिनिमाइज्ड वाया strict enforcement of law and order or strict enforcement of law. Yes or no? ठीक है, नेचुरल इविल कैन बी मिनिमाइज्ड वाया डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हम नेचुरल इविल को नहीं रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट से उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ इविल विल रिमेन द सेम नो मैटर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट यू विल बी गिविंग, बट you can solve the problem of evil with some practical solution. Moral evil can be minimized, natural evil can be minimized. Moral evil can be minimized via education,
via empowerment of certain community, via strict enforcement of law and order, etc. In the same manner, natural evil can be minimized by relocating most of the people from disaster prone sites, or by having some other necessary adjustment, or you can say via disaster management. So this is the problem of evil from my side. Thank you so much.